ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਟ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਾਪ ਨਾ ਮਿਟਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਪਾਪ ਦੀ ਛਾਪ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਨਾ ਮਿਟੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਕਤਈ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵਨ। ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਧੁੱਲੇ, ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਧੁੱਲੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਧੁੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ, ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਤਖਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਖੇੜਾ। ਕਿਉਂ? ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਾਪੀ ਤੇ ਕੁਰਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਖਿੜੇਗਾ? ਖੇੜਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਭ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ।
क्योंकि गुरु दे सारे नाल ही कह सकते हो नहीं, सब रोगी ने। कोई ऐसा मन नहीं जो रोगी ना होवे, ते मन दा रोग की है सोग, तन दा रोग कोई बीमारी। और गुरबाणी नूं पुछिए महाराज किन्ने रोगी ने, औसत किन्ने रोगी ने, 100 दे च किन्ने क रोगी ने, 10 रोगी ने, 20 रोगी ने, 30 रोगी ने, 40% रोगी ने। महाराज कहते नहीं, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। अगर करोड़ां दे पिछे कोई इकद मनुख तन करके भी स्वस्थ है ते मन करके भी आनंद, ते कोई गिनती है? ये तो कोई गिनती नहीं है, ये तो कोई गिनती नहीं। 1000 बूटे मैं अंबां दे लावां ते सिर्फ एक फली बहुत होवे, बाकी सारे सुख सड़ जान, ये ते माली दी कामयाबी नहीं, ये ते कोई बाग दी महिमा नहीं। 999 ते सुक गए ने, कुमला गए ने, एक नूं फल लग गए ने, एक फली बहुत होया। कहा जा सकता है कि जिहड़ा एक फली बहुत होया ये गैर सुभावक है। इस वास्ते भगतां दे आनंद ते खेड़े नूं देख के प्राचीन जमाने ते हुण भी कह दिता जाता है कोई पागल ही लगदे ने, पागल ही लगदे ने। नुकसान हो गया ते खिड़े होए ने, बेइज्जती हो गई है ते खिड़े होए ने। अकाली कौर सिंह मैनू चंगी तरह याद, कश्मीर दे श्रीनगर गुरुद्वारे सिंह सभा च कथा करके बाहर आए ने, किसी ने करारियां 3-4 गालां कढ़ियां। उन्हां दे नाल रहण वाले संत फकीर सिंह ने मैनू दसिया काफी लंबे समय तक श्री गुरु सिंह सभा कीर्तन भी करते रहे, जम्मू दे कीर्तन भी करते रहे। 3-4 गालां बड़ियां करारियां कढ़ियां, माड़ियां मोटियां ने, क्योंकि कथा च कुछ ऐसे विचार कहे जो उन्हां दे अनुकूल नहीं सन, नहीं सन। आपे तो बाहर हो गए, जबत ना कर सके, करारियां 4 गालां कढ़ दित्तियां ते चोली अड के खड़े हो गए ते हसदियां होइयां कहण लगे कोई होर गप्पा, गुरमुख प्यारिया कोई होर गप्पा है तो भी पा देगा। कहण लगा महापुरखो मैं थानू गालां कढ़ियां ने। ते अकाली कौर सिंह जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा तत्करा लिखिया है, कहण लगे कौर सिंह मर गया जिथे तक दुनिया दीयां गालां पहुंचदियां सन। मैनू गाल कढ़नी सी ते कम से कम 5-7 साल पहले कढ़दा, मेरे तक पहुंचनी सी, हुण नहीं पहुंचदी, हुण तू कढ़ पिया। मैनू गाल ही कढ़नी सी ते 5-7 साल पहले मिलना सी मैनू, हुण नहीं। हुण ते असीं उस दुनिया दे मालिक हां, उत्थे रहिंदे हां जिथे तेरियां गालां पहुंचदियां नहीं, ते जिहड़ी चीज मेरे तक पहुंची नहीं ते मैं तैनू की जवाब दें? मेरे तक नहीं पहुंची। ऐसे भी लोग ने, निक्की जिहा गल कोई कह देंदा है, अगला कहंदा है मैं गुरुद्वारे ही नहीं आना, कल तो आना ही नहीं। बथेरे लोगों को मैं इस तरह सुन लेना, नहीं जी उत्थे इन्नी गल आख दित्ती गई है। मैं कहा हद हो गई, घर दे च माड़ी मोटी गल हो जाए तू कहना मैं अज घर नहीं जाना, छोड़ देगा घर, घर ते तू चला जाना। भावें पुत्र ने कुछ ऐसी वैसी गल आख दी है, पत्नी ने आख दी है, पति ने आख दी है, मां बाप ने आख दी है, तू इंज ते नहीं कहता अज मैं घर नहीं जाना। एक गल जे तेरी समझ च नहीं आई ते आखी गई है, तू आखे मैं कल तो गुरुद्वारे ही नहीं जाना, गल स्पष्ट हो गई। गुरुद्वारा तू छोड़ना चाहता सी, बहाना तेनू चाहिदा सी, मिल गया, वो मिल गया थे। गल इतनी है, हकीकत है। मैं अर्ज करा अगर 1 करोड़ दे पिछे कोई 2-4 मनुख ऐसे ने मन दे तरल ते आनंदित ने ते तन दे तरल ते स्वस्थ ने, तो ये कोई गिनती नहीं है, बहुत बड़ी गिनती नहीं है। कोटन में नानक को
नारायण जय जीत। करोड़ां च कोई इक्कत, करोड़ां च। जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाना। कोई करोड़ां च इक्कत गुरमुख जिसनों पहचान होई है, समझ होई है ते जिसदे हिरदे च प्रभु है, जिसदे दुख ते पाप नाश हो गए, जो तन दे तल ते स्वस्थ है ते मन दे तल ते आनंदित है। महाराज कहने रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। बड़े बड़े संत में देखे ने, मैं अर्ज करा असाध रोग दे च ग्रसे हुए, सोग चिंता दे च फसे, उन जगत दा समाधान लभदे ने। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पर थोड़ी शरधा बिल्कुल अशरधा ना हो जाए, थोड़ा कारण भी दसते हैं। जिस मनुख दा लेखा इसे ही जन्म दे च निबड़ना होवे ना, निबड़दा है। नानक जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। गल खत्म। साडा अगला जन्म नहीं होवेगा इस तो। ये पंक्ति दियां ये विचारां ने। धर्म राय दर कागज फारे जन नानक लेखा समझा। साडे ओ कागज फाड़ दिते गए ने जिन्हां दे मुताबिक अगला जन्म चलदा सी। गल खत्म। सूक्ष्म शरीर मिट गया, कर्मा दा ढांचा टुट गया। इस तरह दे मनुख भी महान रोगी देखे गए ने। संत बाबा अतर सिंह दी सज्जी लत गल गई सी, सज्जा पैर। भरी संगत विच बिठंड च सप ने डंग मारिया सी। संगत विच सप आया, डंग मार के नसिया, फिर संगतां नूं भी दिखाई दिता है, बाबा जी नूं भी दिखाई दिता। दो बंदे लाठियां लेके भजे, रोकिया संत ने। बाबा अतर सिंह कहने लगे एक कर्जा ते निबड़ गया, हुण मार के फिर मेरे ते कर्जा चाड़ना है। एक कर्जा निबड़ गया साडा, गल खत्म। और यही ते कर्जा रहिंदा सी साडा, निबड़ गया। हुण ये अकाल पुरख दी खेड, अकाल पुरख जाने। इलाज भी बड़ा होया, लत ठीक नहीं हुई सी। और बाबा अतर सिंह कहंदे रहे नहीं, इन्हू भोग लैण दो, ये चलेगा। 3 साल होए ने, स्वामी कृष्णानंद गुजरे ने, महर्षि रमन गुजरे ने, जिन्हां दी बड़ी प्रतिष्ठा ते बड़ी गल ते हिंदू जगत कहंदा सी ब्रह्म ज्ञानी ने। कंठ दा कैंसर सी, गले दे च कैंसर सी। हरे रामा हरे कृष्णा जिन्हां दा पंथ सारी दुनिया चले इस वक्त, बड़े मस्त होके कई गीत गांदे ने। 3 साल कंठ दा कैंसर सी, गले दे च कैंसर सी। गला सुज गया सी, जख्म बाहर भी चढ़न लग पे सन। हैरानगी हो जाती है। इस तरह के कुछ होर भी मैं रसक पुरुष देखे ने, जुड़िया हुई आत्मावां देखिया ने। एक ही है, इसनू मैं इस तरह उदाहरण देना होना, पता नहीं थोड़ी तसल्ली होगी कि नहीं। एक एकड़ दा सरोवर है, उस दे च पानी है और वो 5 फुट गहरा है, और 1 एकड़ जमीन है। इंज कह लो 5000 गज हिंदुस्तानी नाप तोल दे मुताबिक 5000 वर्ग गज जमीन है। सरोवर है इतना बड़ा, और सरोवर दी गहराई है 5 फुट। हुण 5000 गज दे विच जो सरोवर है, इनू हुण 500 गज दे च करना है। ये सारा पानी 500 गज दे च लेना है। 500 वर्ग गज, पहले 5000 सी, हुण 500, तो गहराई ते वध जाएगी। उस हिसाब नाल तुसी खुद अंदाजा लगाओ वो कितना डूंगा हो जाएगा पानी। उत्थे डूंघाई ते वध जाएगी।
ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭੋਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 100 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ 'ਚ ਭੋਗਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ 'ਚ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ 'ਚ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਜੋ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ। ऐसा अनुभव दे आया, ऐसे जन्म में खेड़ने बढ़ रही है, कल खत्म हो रही है। भोगे बिन भागे नहीं, कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, मिटता ही नहीं। पूर्व लो कृत कर्म ने मिटेरी घर गैन, जमीन दे उत्ते बोया होया बीज मेरा कोई होर भी खा सकता है, पर मैं जीवन दे जो बोया है वो तो मैनू ही खाना पेगा। आप बीज आपे ही खा, वो दूसरा नहीं खाता, वो तो उसनों ही खाना पेगा जिसने जीवन दे बीजे। कर्म दा बीज ते जीवन दे भी बोवांगे ना, मैं ही मन नाल जो कर्म करांगा तो उसदे संस्कार ते मेरे च ही बननगे। उसदा दुख दूसरा किस तरह भोगेगा, तीसरा किस तरह भोगे? ओ दुख ते मैं ही भोगांगा, मेरे नाल कोई सहानुभूति कर सकता है, हमदर्दी कर सकता है। हमदर्द तो मुराद दूजे दा दर्द मैं महसूस करदा, हमदर्दी। इनू हिंदी संस्कृति च कहंदे ने सहानुभूति। दूजे दा दुख मैं महसूस करदा, हमदर्दी। लेकिन दूजे दा दर्द महसूस करन नाल दूजे दा दर्द मिटते नहीं जाता, दूजे दा दुख खत्म ते नहीं हो जाता। हमदर्दी जताण नाल कोई दर्द अगले दा मिटते नहीं जाता, खत्म ते नहीं हो जाता। वक्ती तौर ते थोड़ी जिहा तसल्ली आउंदी है, जिन्नू परचावनी कहंदे ने, बस एवें अगले दा मन परचावना है। परचावनी दा इन्ना ही मतलब, अगले दा मन परचा दईए थोड़ा। और परचावनी का की मतलब, थोड़ा परचा दईए, थोड़ी तसल्ली करा दईए, थोड़ा इस दे ख्याल नू बदलीए। हमदर्दी जता के दुख ते भोगना पेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहती है, जिथे तक संसार ते निगाह मारीए खेड़ा नहीं है, सदीवी खेड़ा नहीं है। हाँ, सदीवी रोग है, सदीवी खुशी नहीं है। हाँ, सदीवी दुख है। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। फिर पातशाह इथे तक कहने ने, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकस्यो कोय। हर बंदा दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं है। जरा खोल के देखो, सिवाय दुखां तो और कुछ भी नहीं निकलता। या मनुख अपने रोग की गल करेगा या अपने सोग की चिंता दी। जरा खोल के देखो। ते मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, दूजे नू खोलना की है, दूजे नू किस तरह खोलीए? बस अपना एक रोग बयान करो, अगले दे 10 रोगां दी गल सुननी पेगी। अपनी एक चिंता किसी दे अगों रखो, अगले दियां हजारां चिंतावां दी गल सुननी पेगी। सियाणे मनुख अपनी चिंता कतई किसी दे अगों नहीं रखते और अपने रोग की व्याख्या भी किसी दे अगों नहीं करते। ये भी मैं अर्ज करते। एक आलम ऐसा कहता है, मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है। कहता मैं जीवन भर अपने मत्थे ते दुख नू प्रगट ही नहीं होने देता, प्रगट ही नहीं होने देता। मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन
पहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहंदा डुबिया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खादे ने, पर मैं ये नहीं आखे ले मैं डुब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डुब गया जी, ये रोला मैं नहीं पाया। ये फकीर तबीयत इंसान इंज कहंदा, कोई जरा रोला पांदा जी मैं डुब गया जी, मैं मर गया जी, कोई शांत रह जाता है, चुप रह जाता है। दुख दियां ये दो धारावां ने तन दे च रोग बन के प्रगट होंदा है, मन दे च सोग बन के प्रगट होंदा है। और जो वास्तविक भगत है ते कर्मां दा नवेड़ा जिसदा हो गया, महाराज कहने रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। हरी दे जन दे नेड़े तन दे च रोग नहीं आउंदा, मन दे च सोग नहीं आउंदा। तन करके स्वस्थ होंदा है, मन करके आनंदित होंदा है, खिड़े आउंदा है। नानक भगतां सदा विगास, सदैवी खेड़ा होंदा। ये नहीं कि फुल्लां दी तरह खिड़े रात नूं मुरझा गए, या मौसम दे मुताबिक खिड़े फिर टुट गए, मुरझा गए। हासे रोणियां च बदलदे हो, तुसीं देखदे हो। जवानी बुढ़ापे दे च डल रही है, खुशियां गम दे च बदल जांदियां ने, हासे रोने दे च बदल जांदे ने। नानक भगतां सदा विगास, भगतां दे मन दे सदैवी विगास है। किस तरह क्यों सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा दा नाम की सुनिया, पाप नाश हो गए। ते पापां तो ही दुख पैदा होंदे सन, दुख नाश हो गए। ते पाप की मेरे जिस कर्म तो किसी नूं चोट पहुंची है, बस यही पाप है। अपने हिसाब नाल कोई मनुख अपने हिसाब नाल गिनेगा तो फिर एक भी मुसलमान पुनीत नहीं, कोई फकीर नहीं है। ते जे मुसलमान अपने ढंग नाल देखे तो फिर कोई मोमन नहीं है, सारे ही काफिर ने। अपना दृष्टिकोण नहीं है, प्रभु का दृष्टिकोण, ईश्वरी विधान का दृष्टिकोण उस सामने रखना पेगा। बाकी सारे समाजिक नियम ने। मेरे जिस कर्म तो किसी नूं भी चोट पहुंची है, किसी दे धन नूं चोट पहुंची है, किसी दे मन नूं चोट पहुंची है, किसी दी इज्जत आबरू नूं चोट पहुंची है, किसी दी आर्थिक ढांचे नूं चोट पहुंची है, या किसी दे शरीर नूं चोट पहुंची है, ये चोट पलट के वापस आउंदी है। दुख दिता होया पलट के वापस आ जाता है। इतनी मैं अर्ज कर दें। भाई साहब भाई गुरदास जी की पंक्ति भी थोड़े सामने रखते हैं। दिता लईए अपना अण दिते किछ हथ ना आवे। जो जगत नूं दिता सी पलट के वापस आ गया और कई गुणा वापस आया। दिता होया दुख कई गुणा पलट के वापस आता है। दिता होया सुख कई गुणा पलट के वापस आता है। रब दा नियम जो मैं धरती नूं बीज नहीं दे सकदा, मैं धरती कोल फल दी मंग भी नहीं कर सकदा। और जैसा मैं बीज धरती नूं देना है, उस तो विपरीत उस तो उल्ट कोई दूजे फल दी भी मैं मंग नहीं कर सकदा। वही फल मैनू मिलेगा जो मैं बीज बोया है। आप बीज आपे ही खाए। उन्हां दे पाप नाश हो जाते हैं, इस करके दुख नाश हो जाते हैं। क्यों? परमात्मा दा नाम सुनन करके। ते तुसी आखोगे बड़ा कीर्तन सुनिया सी ते बड़ी कथा सुनी है, बड़ा पाठ सुनिया, दुख ते मौजूद है। तन दे च रोग बन के मौजूद है, मन दे सोग बन के मौजूद है। बड़ा कीर्तन सुने और सुन रहे हैं, बड़ी कथा सुनी है, सुन रहे हैं। कथा सुनत मन हरिया होवे, मन बाग बाग हो जाता है, ऐसा नहीं दिखाई देता। कीर्तन सारी मैल धो देंदा है, ऐसा नहीं दिखाई देता। बहुत सुने, बहुत सुने। तो इत्थे दो तरह की तरक खड़ी हो सकती है।
या तो सुनिया ही नहीं, क्योंकि रोग जो मौजूद है, सोग जो मौजूद है, या फिर नास्तिकां दा दूजा तर्क, नाम दे सुनन नाल कोई दुख नहीं मिटदे, कोई सोग नहीं मिटदा, रहिंदा है। इन्हां दोहां दे ते एक गल मननी पैगी, गुरुद्वारे आने वाला आस्तिक है तो कबूल करना पेगा नहीं सुनिया, दुख मौजूद है नहीं सुनिया परमात्मा दा नाम, सोग मौजूद है नहीं सुनिया परमात्मा दा नाम। सुनन दी कितनी महिमा है और वास्तविक वो स्रोत की है। भगत कबीर दा एक बड़ा कीमती श्लोक, कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक बचन सतगुर सूर में दा आया। बचन दे पिछे ताकत चाहिए है, किसे आध्यात्मक पुरुष दा बोल होवे, क्योंकि आउंदा ही परमात्मा तो है। जैसे में आवे खसम की बाणी, उस बोल दे च जान होंदी है और वो बोल अमर होंदा है, उस बोल दी शक्ति होंदी है। वो बोल कदी पुराना नहीं आंदा, बाकी सारे बोल पुराने हो जाते। किसी महान कवि दी कविता भी 3 दफा तो ज्यादा नहीं सुन सकांगे, पर जिन्हां ने कदी गुरबाणी नूं गहराई नाल पढ़िया है, रोज रोज पढ़दे आ नवा रस ते गुरबाणी नित नवी, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। बोल जो पुराने नामन वो नवे दातार दे जो सदा नवीन है उसदे बोल ने। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया परया करे जे छेक। ये मैं सुनिया कि बाणी दा बाण लगन दा की मैं सुनिया सुनदे ही लागत ही भोए गिर परया जमीन ते आ गया, मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक बन गया। शब्द दा तीर की लगया, हुण मैं हर एक दे कदमां दी खाक हो गया। परा करेजे छेक, करेजे च छेक किस चीज दा? बिरहे दा, बैराग दा। कि मैं सुनिया कि बिरहा पैदा हो गया, बैराग पैदा हो गया। कि मैं सुनिया कि मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक हो गया। जिस ढंग नाल सिख अपना स्वरूप पेश करदा है और आम मंदिर मस्जिदां दे जाण वाले धार्मिक बड़ा शुद्ध हंकार आउंदा है इन्हां कोल, ये भी महर्स करदे हैं। कहंदे ने एक पापी कोल, एक गुनाहगार कोल हंकार करन वास्ते कुछ भी नहीं होंदा, एक चोर कोल हंकार करन वास्ते कुछ भी नहीं होंदा। समाज दे किस तरह आ सकदा है कि मैं माड़ा मोटा चोर नहीं वड्डा चोर हां? किस तरह अपने हंकार नूं प्रगट करेगा? समाज दे चोर है, यार है, दुराचारी है, ठग है, ओदा हंकार टिक नहीं सकदा। चोरी दा की हंकार, ठगी दा की हंकार। पर मनुख दान दा ते हंकार कर सकदा है, ज्ञान दा ते हंकार कर सकदा है, कीते हुए नितनेम दा हंकार कर सकदा है, कीर्तन करन दा हंकार कर सकदा है, कीर्तन सुनन दा हंकार कर सकदा है। इस वास्ते कुछ तार्किक लोग कहंदे ने शुद्ध हंकार नाल भरे हुए चेहरे मंदिर मस्जिदां जो है निकलते दिखाई दे रहे हैं। इकबाल ने इत्थों ही तनस कर दिती सी। बड़ा शुद्ध हंकार देखण नूं मिलदा है, धर्म दा हंकार, ज्ञान दा हंकार। असी गुरबाणी सुन के आया, नमाज पढ़ के आया, इसदा हंकार। हद हो गई। उसने ही सुनिया कीर्तन जो सारियां दे चरनां दी खाक हो गया। भाई साहब भाई वीर सिंह कहंदे ने मेरे छुपे रहण दी इच्छा, हुण ते मैं बिल्कुल छुप जाना चाहना, मिट जाना चाहना। ऐसे पैरां दे थल्ले हो जावां किसी दी निगाह भी मेरे ते ना पै, मेरे छुपे रहण दी इच्छा। ते छुप ते हो ही सकदा जो कदमां ते थल्ले हो जाए। कबीर सतगुर सूर में
बाया बान जो एक, लागत ही भौए गिर परिया, परिया करे जे छेक। अगर सुन लिया तो महाराज कहते ने सुनदियां ये मनुख मामूली नहीं होवेगा, निरा इसदे दुख ते पाप भी नाश नहीं होणगे, ये सिद्ध पुरुष हो जाएगा, इहदे कोल वाक सते आ जाएगी। जिसने परमात्मा दा बोल सुन लिया वो बोल हुण उस मनुख दे बोलां दे च मिश्रित हो जाएगा और उसदा बोल वाक सतिया नूं जन्म देवेगा। जिन्हें परमात्मा दा बोल सुन लिया कन्नां दे राहीं, परमात्मा दा बोल ओदी ज़बान ते बैठ जाएगा। प्रभ जी बसे साध की रसना, ओदी ज़बान ते परमात्मा दा बोल बैठ जाएगा। ते जिहदी ज़बान ते परमात्मा दा बोल है, बोल व्यर्थ नहीं जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सुनिए सिद्ध, परमात्मा दा नाम सुन के सिद्ध बन जाएगा, ओदे कोल वाक सत्य आ जाएगी। कहंदे ने सिद्ध पुरुष कोल की आउंदा है, ओदे हत्थां च बरकत आउंदी है, ओदे कदमां दे च क्रांति आउंदी है, ओदे बोलां दे सत्य आउंदी है। ये सिद्ध पुरुष दे लक्षण। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, जो प्रभु दा नाम सुन लेंदे ने सिद्ध बन जांदे ने, पीर बन जांदे ने, नाथ बन जांदे ने, देवते बन जांदे ने, बड़े पावन पवित्र हो जाते हैं, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पीरां फकीरां वर्गी पदवी प्राप्त कर लेंदे ने। नाथ ये शब्द चलदिया इत्थों है, जिस दी नक दे च नथ होवे ते कहंदे ने नथया होया है, जो सारे अपने इंद्रियां नूं काबू पा लवे, नथ लवे, ओदे हथ पैर गलत पासे नहीं जाते, ओदियां अखां गलत पासे नहीं जांदियां, रसना कन नासका त्वचा सब नूं उसने नथ पा दी, ओनूं कहंदे नाथ। इसने अपने तमाम इन ज्ञान इंद्रियां नूं नथ लिया, काबू कर लिया। भगत नामदेव जी महाराज कहंदे ने 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना। ये 10 बैरागना इंद्रिय में काबू कर लेने, पंजां दा ते नामो निशानी कदों दा मिट गया, उन्हां दा ते मैं नामो निशान ही मिटा दिता है। अज क्रोध नूं लवोगे है ही कोई नहीं, मोह नूं लवोगे है ही कोई नहीं। मोह ते कदों दा प्रेम बन गया, क्रोध ते कदों दा दया बन गया, हंकार ते कदों दा निर्वाणता दा रूप धारण कर गया, और काम ते कदों दा लज्जा बन गया, शर्मो हया बन गया। जितनी समझ वधदी है उतनी लज्जा वधदी है, शर्म वधदी है, और जितना समझ मनुख होवेगा उतना बेशर्म होवेगा, गुस्ताखी माफ। सूझबूझ वध गई, शर्म वध जाएगी, समझ दे नाल शर्म वध जाएगी। बाबा अतर सिंह होना ते एक प्रश्न सी, और यह प्रश्न अकाली कौर सिंह ते भी सी। दोहां दी जीवन कथा दे च मैं पढ़िया। पहलगाम दे च माता भाग कौर ने प्रश्न कर दिता सी अकाली कौर सिंह ते। कश्मीर दे इलाके दे जिहड़े सज्जन ने माता भाग कौर नूं जाणदे होणगे, दस्तार सजांदे सन, मर्दां दी तरह बोलदे सन। अकाली कौर सिंह दी अक्सर सेवा करदे सन। वैसे उन्हां दा अपना होटलां दा धंधा सी कश्मीर दे। एक संपन्न घराने दी ये स्त्री सी और नाम रंग नाल रंगी हुई। अकाली कौर सिंह ते प्रश्न, तुसी इतनी संकोचवी तबीयत दे क्यों, इतने शर्मीले क्यों, इतना संकोच, इतनी शर्म। उस वक्त अकाली जी ने तो इतना ही जवाब दिता सी, कहंदे मैं हां ते कुछ नहीं, सारा कश्मीर मेरा सन्मान करदा है, शर्म नाल मेरा सिर झुक जांदा, मैं की करा। बिरती संकोचमई हो जाती। लोकी सन्मान देंदे ने, इतनी मेरी पात्रता नहीं है। दूसरा, इस सन्मान तो छुपे रहने की चाह है, इस वास्ते संकोचमई बिरती है। समझ वधदी है, संकोच वधदा है।
समझ ਵੱਧਦੀ है शर्म ਵੱਧਦੀ है, बेसमझी है बेशर्मी है। भुल के भी इस चक्कर च ना पै जाना कि जिथे शर्म हया कोई नहीं, वो समझदार होवेगा, बिल्कुल नहीं, बेसमझ होवेगा, कोई समझ नहीं। आम लोगों का ऐसा ख्याल है की होया बेशर्मी है, समझदार ते हैं, ये किस तरह हो सकता है? समझदार होवे ते बेशर्म होवे, हो ही नहीं सकता। शर्म हया समझ तो पैदा होती है, बेसमझी तो बेशर्मी उसका जो है जन्म होता है। जितनी समझ बढ़ती है, संकोचमयी बिरतियां जो है अंदर जन्म लेंदियां ने, शर्मीलापन भी उसके अंदर आ सकता है। साहिब कहते अगर उसने नाम सुनिया है तो सिद्ध बन जाएगा, पीर बन जाएगा, नाथ बन जाएगा, अपने इंद्रियां नूं काबू कर लेगा, नथ पा छड़ेगा, देवता हो जाएगा। सुनिया धरत वल आकाश, सुनन दे नाल उसनू धरती दे राज दा पता चल जाएगा कि धरती नू किसने चुकिया, क्योंकि पुराणक मत यह है कि जमीन दे थल्ले धौला बैल है, चिट्टे रंग दा एक बैल है, उसने चुकी हुई है। महाराज कहते परमात्मा दा नाम जो सुन लवेगा, इस धरती दे राज दा भी उसनू ज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब जिसनों असी साइंटिस्ट कहने हैं, विज्ञानक, परमात्मा दा नाम सुन के विज्ञानक भी हो सकता है। और विज्ञान दे संबंध च बड़ी अगम्मी खोजा ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे खैर मुख्तसर में अर्ज करना समा हो गया। महाराज कहते ने परमात्मा दा नाम जो सुन लेंदा है, उसनू पता चल जाता है आकाश किस तरह खड़ा है, और ये धौला बैल की है, और जमीन किस दे आसरे ते खड़ी है, इस सारी सच्चाई दा उसनू पता चल जाता। हाँ जी। सुनिया दीप लो पाताल, जितने जजीरे ने, आइलैंड जिन्हां नूं कहंदे ने दीप, हिंदी विच कहंदे ने, संस्कृत विच दीप, पानी ने जो अपने विच, सागर ने जो अपने विच धरती नूं पैदा कीता होया, थां थां ते इन्हां नूं दीप कहंदे ने। परमात्मा दा नाम सुनन नाल सारे दीपां दा पता चल जाता है। हैरानगी दी गल है, उन्हां दिनां च हवाई जहाज नहीं सन, नौखंड पृथ्वी दा भी जिक्र है, सारे दीपां दा भी जिक्र है, खंडां ब्रह्मंडां दा भी जिक्र है, और इस तरह दियां कोई दूरबीना खुर्दबीना नहीं सन, कोई हवाई जहाज भी नहीं सन। जिंदगी बड़ी छोटी है, सारा किस तरह भ्रमण कीता होवेगा। पहाड़ां दियां गल्लां, दीपां दियां गल्लां, खंडां ब्रह्मंडां दियां गल्लां, सागर दियां गल्लां, परमात्मा दा नाम सुनिया, आत्मा दे तल ते पहुंचे ने, आत्मा व्यापक है। तो इस तरह के मनुख नूं कहंदे ने सर्वग, सब कुछ दी समझ आ गई, सब कुछ दा जो है पता चल गया। उन्होंने पता चल जाता है पाताल दा, उसनों पता चल जाता है तरह तरह के जो है जजीरियां दा, और उसनों पता चल जाता है तरह तरह के खंड ब्रह्मंडां दा। सुनिया पोह न सके काल, समय दा उस दे ते प्रभाव नहीं पैंदा। कहंदे ना समय दे नाल चलना चाहिए, समय दे नाल बदलना चाहिए। काल तो मुराद वक्त। आम लोग कहंदे ने वक्त दे मुताबिक चलो, समय दे मुताबिक चलो। तो समय दे मुताबिक चलन तो मुराद की होंदे, कहंदे जो समाज करदा है वही करो। समाज सारा शराब पे पींदा है, पियो शराब। समाजिक तल ते स्त्री नगन घूम रही है, घूमो नंगे। समाजिक तल ते अजदवाजी जिंदगी, ब्याह शादियां गुड्डी गुड्डे दा खेल बन के रह गईयां। सवेरे शादी, शामी तलाक। तो समाज नाल चलो। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ इस वक्त के प्रभाव हेठ आए ने, वक्त उन्होंने खा जाता है, समा उन्होंने नष्ट कर देता है, समय की मार हेठ आके बर्बाद हो जाते हैं। महाराज कहते हैं परमात्मा का जो नाम सुनते ने, समा उन्होंने प्रभावित नहीं करता। समय का, वक्त का प्रभाव उन्होंने ते नहीं पैंदा, काल का प्रभाव उन्होंने ते नहीं पैंदा, क्योंकि उन्होंने अकाल की गल सुन ली। वो अकाल नाल जो है जुड़े ने, सुने पोह न सके काल। नानक भगतां सदा विगास, भगतां दे मन दे सਦੀवी विगास बनिया रहिंदा, सदीवी खेड़ा बनिया रहिंदा। क्यों?
ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਸੋਗ ਮਿਟਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ 2 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਰਹੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਰਹੀ, ਤੇ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਗਮ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੇ